ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہارے وجود پر میں اپنی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ وجدان سا سے ٹکرانے کا نہیں سوچو گی۔ وجدان نے غصے سے کہا تو واش روم بھاگی۔ کچھ دیر پہلے وجدان نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ اس کی آفس میں ملازمت کرتی تھی اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے وجدان کے خلاف جھوٹا ثبوت پولیس کو دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم جاتی، وجدان نے اسے بازو سے کھینچتے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ معصوم روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، پر وجدان اس پر اپنا انتقام اتارنے لگا۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ ٹوٹی بکھری سسک رہی تھی۔ وجدان گہرا مسکرایا، لیکن اسی لمحے میسج موصول ہوا کہ وہ لڑکی بے گناہ۔ وجدان ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن والدین کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ پیسوں کی کوئی واضح کمی نہیں تھی، لیکن خودداری کی وجہ سے وہ کسی سے کوئی تانا نہیں سن سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بھابھی اسے پسند نہیں کرتی، لیکن ماں سے کیے وعدے کی مجبوری میں وہ اس گھر پر رہ رہا تھا۔ اس کی اماں نے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ سے ساتھ رکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ساری زندگی ایک ساتھ رہیں۔ کچھ سال قبل ان کا خوشحال گھرانہ تھا جس کو کسی کی گندی نظر لگ گئی۔ پہلے والد اور پھر والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار چکے تھے۔ وہ جیسے بکھر سا گیا تھا۔ گھر میں چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کے بہت قریب تھا۔ بڑے بھائی نے تو اپنی فیملی اور بیوی بچوں کی خاطر خود کو سنبھال لیا، سارا دن نوکری میں وقف کر دیا، جبکہ وجدان کو اپنا ماسٹرز چھوڑ کر نوکری کی تلاش کرنی پڑی، کیونکہ اس کی بھابھی کھانا دیتے ہوئے مفت کے ٹکڑوں پر پلنے کا تانا دیا کرتی تھی۔ تمہاری فیس اور ماں باپ پر ہوئے خرچ کے ادھار کو چکانے کی وجہ سے سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں، مجھے اور بچوں کو وقت تک نہیں دے پاتے۔ تمہیں بھی ان کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انگلی پکڑا رہا ہے تو بازو پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ اپنے بل بوتے پر خود کھڑے ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ والدین کی موجودگی میں تو دیور اور بھابھی کا تو بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن برے وقت میں آپ کو ہر انسان کی حقیقت واضح نظر آ جاتی ہے، اور پھر وہ بھی تو انسان تھی۔ اس لیے بغیر شکوہ کیے ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ بغیر تجربے اور گریجویشن کی بنیاد پر اسے ماہانہ 40,000 روپے پر نوکری مل سکی۔ یہ اس کے خرچ اٹھانے کو کافی تھی اور بھائی کا بوجھ بھی بڑھ جاتا۔ بھابھی تو اس کی نوکری کرنے پر کافی خوش ہوئی تھی، لیکن بھائی کو ذرا اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے اپنی پڑھائی کو مکمل کر لے۔ میں تو کہتا ہوں تم نوکری کو چھوڑ دو، تنخواہ بھی معمولی ہے اور کام تم سے دگنا لے لیتے ہیں۔ ماسٹرز پر دھیان دو، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس سے بہتر اور اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ بڑے بھائی نے اپنائیت اور محبت سے اسے مشورہ دیا، لیکن بھابھی کی نظروں کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً انکار کر گیا۔ آج کل بھائی، ڈگری سے زیادہ لوگ تجربہ مانگتے ہیں۔ ماسٹر کی پڑھائی میں بھی ساتھ ساتھ کر لوں گا، تاکہ کچھ وقت میں آپ کی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ اس کی بات سن کر ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کا بھائی اتنا بدل کیوں گیا ہے۔ تم کبھی خود کو بوجھ مت سمجھنا، تم میرے بھائی ہو اور تمہارے لاڈ اٹھانا میرا فرض ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ بیوی منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی کہ اپنی اولاد کی تو اتنی فکر نہیں، اب اتنے بڑے بچے کو گود لینے کا سوچ رہا ہے۔ بھائی، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ایک دن آپ کے لیے فخر کا باعث بنوں گا۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ بیگ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ بڑے بھائی اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ تم نے ہی اس بچے کو نوکری کے لیے فورس کیا ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وہ ویسے ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، کچھ تو لحاظ کر لیتی۔ آپ کی نظریں شاید دھوکہ کھا رہی ہیں۔ اس نے ابھی خود کہا کہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ ویسے بھی وہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ اس بچے سے نظر ہٹا کر اپنے بچوں کی جانب دیکھیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر انہیں افسوس ہوا۔
उन्हें आज भी अपनी शादी का वो दिन याद है जब सबसे ज्यादा वजदान ही खुश था और भाभी को आपा कहकर बुलाया करता था। तुम्हें और बच्चों को मैंने कोई सहूलत से महरूम नहीं रखा, लेकिन अब तुम्हारे दिल में लालच भरने लगा है। बहुत जल्द इसका अंजाम भी भुगत लोगी। दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई से बच्चे काफी डर सहम जाते थे, इसलिए वो खामोशी से दफ्तर का बैग उठाकर घर से निकल गए, जबकि बीवी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। उन्हें नहीं लगता था कि कुछ गलत किया है। जिंदगी का उसूल है, जब हमारे पास इख्तियारात आते हैं तो हम खुद जालिम बनकर भी जुल्म की इंतहा को समझ नहीं पाते। नूर का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, जिसमें उसके बाप पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी। तीनों अपने मैदान में अच्छा नाम बना रही थी। बचपन से मां के इंतकाल के बाद उनके साथ फसादी पुप्पो रहती थी। हमेशा उनका ये किरदार रहा था कि किसी तरह वो इन तीनों बहनों को अपने भाई के सामने बेइज्जत करती रहे। अगर मेरे भाई के यहाँ बेटा होता तो आज उनका सहारा होता। उनकी बात सुनकर नूर की जबान को खुजली हुई, क्योंकि बाप ने तो कभी अपनी बहन को कुछ कहना नहीं था। हर बेटा सहारा नहीं बनता, कुछ बेटे तो मां को भी बेसहारा कर देते हैं। आपको अपनी मिसाल याद नहीं है? आपका बेटा चोरी के जुर्म में फंस चुका था। वो दिन रात यही कहती रहती थी, हाय अब मुझे यही देखना रह गया था। जिनको मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला वही मुझे मेरी औलाद का ताना दे रही हैं। वैसे तो वो उसका करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन भाई साहब के होते हुए उन्होंने पैंतरा ही बदल लिया। अभी जाकर माफी मांगो। अब्बा, ये जो सारा दिन मेरी बहनों को सुनाती रहती हैं, मेरी मरी हुई मां के बारे में बातें करती हैं, तब नूर, मैंने तुम्हें अभी कहा कि पुप्पो से माफी मांगो। उसकी बहनें पुप्पो को नफरत से देखने लगी, जिस पर उन्होंने ड्रामा जारी रखा था। नूर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश हो गई। पुप्पो माफ कर दे। पुप्पो ने आगे बढ़कर उसे खींचकर गले से लगा लिया और जानबूझकर ऊंचा कहने लगी कि तुम मुझे पराई थोड़ा ही हो, बल्कि मेरे अपने बच्चों की तरह हो। माँ तो अपने बच्चों की हर बात को माफ कर देती है। नूर हैरानी से उनके चेहरे को देखने लगी। भाई साहब के मुड़ते ही शातिराना मुस्कुराहट उनके चेहरे पर वाज़िहा नजर आई। अपने उसी आवारा और जेली बेटे की शादी तुमसे कराऊंगी, तुम भी अपनी पुप्पो को याद रखोगी। आज नूर ने उनकी आना पर वार किया था, जिसका पलटकर जवाब देना तो बनता था। कभी बाप ने पलटकर अपनी बेटियों के हक में कोई बात नहीं कही थी। यही वजह थी कि नूर अपने बलबूते पर कुछ करके आगे बढ़ना चाहती थी। पुप्पो के इस बार को कभी कामयाब होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसे अपने पुप्पो पर पूरा भरोसा था। वो अपने भाई के प्यार का नाजायज फायदा उठाती हैं। खुद अपना रिश्ता बसा न सकी, जवानी में ही फसाद करके घर को लौट आई। पुप्पा वापस लेने को जरूर आए थे, लेकिन उनकी गुर्बत और जेब अलग घर की इजाजत नहीं देती थी। पुप्पो ने साफ मना कर दिया कि उसकी माँ और बहन मुझ पर जुल्म करती हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। भाभी के सर पर आकर बैठ गईं और दोनों के रिश्तों में खासी दूरियां पैदा कर दी। वो पुप्पो के सहारे नहीं रह सकती थी, क्योंकि उन्हें इस औरत से अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। क्यों पुप्पो से पंगा लेती हो तुम? उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तुम्हें नीचा गिराने को कुछ भी कर सकती हैं। नूर ने अब तक उन्हें बहुत गलत साबित किया था। वो तो चाहती थी कि उनकी कोई औलाद आगे ना बढ़ सके, लेकिन नूर ने साबित कर दिया कि वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। उसकी बढ़ती कामयाबी और नाम को देखकर उसके अब्बा भी खामोश हो गए। हमने बहुत उनकी बातें सुन ली, अब आगे उनकी मनमानी करने का वक्त जा चुका। वो नफरत से पुप्पो की झलक को देखने लगी, उनके दिए जख्मों को अच्छे से जानती थी। ऑफिस पहुंचते ही उसका सर दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉफी का कप पकड़कर वो अपने टेबल पर बैठ गया। उसकी पर्सनैलिटी और जहानत पर काफ़ी लड़कियां मरती थीं। कुछ ने तो वाज़ेह इशारे भी किए। वजदान का मकसद यहाँ किसी को लुभाने का नहीं था, बल्कि वो तो अपने पैरों पर खड़ा होने को आया था। ये नौकरी सिर्फ एक सीढ़ी थी। वो सारी जिंदगी ऐसी नौकरी पर नहीं गुजार सकता था। उसकी भाभी बिल्कुल ठीक ही तो कहती हैं। आंखें नम होने लगी, लेकिन अपने जज्बात पर काबू पाया, क्योंकि लड़के आसानी से रोते थोड़ा ही हैं।
सर वजदान, आपकी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं? नूर की आवाज पर उसने सर उठाकर इस लड़की को देखा जो इंटर्नशिप के लिए ऑफिस में आई थी। वो अपने पर्सनल मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता था। नूर को वो कई मर्तबा मना कर चुका था कि वो उससे ऐसे सवालात मत किया करें। बॉस की चहेती होने की वजह से वजदान की अंडर काम सीख रही थी। मिस नूर, आप अपने काम से काम रखें, नहायत रूखेपन से जवाब दिया, जिस पर उसका मुंह बन गया। वो उसे मजीद कॉफ़ी या फिर आई ड्रॉप का पूछने वाली थी। इतने दिन दोनों एक साथ काम करते हो गए थे और इस दौरान वो ना चाहते हुए भी उसकी जानिब खिंच रही थी। यहां तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं, मैं सिर्फ हमदर्दी की खातिर कह रही थी। वजदान को हमदर्दी करने से ही तो सख्त नफरत थी। वजदान से इतनी बेतकल्लुफी सिर्फ इस वजह से थी कि वो लड़कियों की तरफ माइल नहीं होता, शहद की मक्खी की तरह उनसे चिपक नहीं जाता। वो किसी रिश्ते को हमदर्दी के सहारे बढ़ा नहीं सकता था। हमदर्दी, माई फुट। आप यहाँ जिस काम को सीखने आई हैं सिर्फ उसी पर तवज्जो दें। आगे पीछे आपका आजकल ध्यान बहुत ज्यादा है। एकदम टेबल पर हाथ मारता तेज गुस्से में बोला। इर्द गिर्द काम करते लोग दोनों को देखने लगे, जिस पर नूर शर्मिंदगी से सर मजीद झुका गई। इस शख्स पर लानत भेजी और दिल में पक्का अहद किया कि वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करेगी। घर के गुस्से को वो ऑफिस में निकाल चुका था। नूर इस कदर बेइज्जती पर आंखें भरकर रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। अपने दिल को समझाकर वो वापस मोड़ सकती थी, लेकिन नाकदरी कभी बर्दाश्त नहीं थी। जरा खूबसूरत और ज़हीन हैं तो क्या खुद को खुदा समझ बैठे हैं? अब उनकी शिकायत अंकल से ज़रूर करूंगी कि इनके ऑफिस में पागल लोग जमा हैं। सॉरी नूर, इस वक्त मैं आपकी किसी बात को सुनने के हक में नहीं हूं। क्या हम ये बातें बाद में कर सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू देखकर अपने लहजे को नर्म किया। उसकी माफ़ी पर ख़ास रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह बात रफा दफा कर दी। वो इस इंटर्नशिप पर बहुत काबिलियत के बाद अपने उस्ताद के रेफर करने पर पहुंची थी। इट्स ओके सर। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ा ही थी कि इस खड़ूस इंसान के सामने अपने आंसू बहाकर खुद को बेमोल कर देती। आज तक वो अपनी पुप्पो के सामने नहीं झुकी थी, तो ये शख्स क्या चीज़ था? वो उसे ज़रा बराबर नहीं जानता था, तो उसकी तकलीफ़ों को क्यों समझेगा? वो अपने बनाए ख्वाबों के महल को खुद तोड़ने लगी और सर उठाकर संजीदगी से काम में लग गई। काफ़ी देर खामोशी महसूस करके वजदान ने एक नज़र उसे देखा। उसे लगा वो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुका है। तभी उसकी नज़र चूड़ियों में छुपे उसके हाथ के लाल निशान पर गई। मिस नूर, आपके हाथ पर क्या हुआ? सर, जो उसूल आपने मेरे पे लागू किया है वो खुद पर भी लागू कर लें। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करना ज़रूरी नहीं। वो हैरानी से इस लड़की को देखने लगा। शायद वो डांट को ज़्यादा ही दिल पर ले गई थी, तभी उसकी संजीदगी पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उफ, पागल लड़की है, इसको जितना मनाने की कोशिश करूंगा उतना ही सर पर चढ़ेगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। उस दिन के बाद से नूर के रवैये में एक अजीब सा बदलाव पैदा हो गया। वो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा बात करती थी और ना ही गलतियां करके डांट का मौका देती थी। एक बचकाना बच्ची से जैसे संजीदा और पुख्ता औरत में बदल गई हो। नूर को गुजरे दिन याद आने लगे। उसकी पुप्पो ने ही ये सारी कारिस्तानी की थी। आज का दिन दोनों की जिंदगियों में बदलाव लाने वाला था। वो नहीं जानते थे कि तकदीर ने उनके लिए क्या लिख रखा है। अचानक ऑफिस में हबड़ दबड़ मच चुकी थी, क्योंकि मालिक के बकौल किसी ने उनके प्रोजेक्ट की फाइल को आगे दुश्मनों में बेचा है, और इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। बहुत बड़ी डील कैंसिल हो गई थी, और अगर दुश्मन ना पकड़ा जाता तो उनकी कंपनी सील भी हो सकती थी। इस वक्त वो सख्त तनाव का शिकार थे। सर, हम आपके साथ धोखा दही क्यों करेंगे? हमें इससे क्या हासिल होगा? एक लड़की घबरा सी गई थी, क्योंकि कुछ देर में वहां पुलिस पहुंचने वाली थी। अगर कंपनी बंद हो जाती तो सबकी नौकरियां दांव पर लग चुकी थी। मुजरिम को पकड़कर ही दम लिया जाना था। किसी ने तो वो फाइल गुम की है, और मुझे यहां पर किसी पर एतबार नहीं। उनके बिजनेस को लाखों का नुकसान हुआ था,
और यही नहीं, मार्केट में उनका नाम भी खराब हो गया था। पुलिस तेजी से तलाशी लेने लगी। सबसे पहले मैनेजर से जान पड़ताल शुरू की गई। मालिक इस वक्त बहुत गुस्से में थे। ये बिजनेस उन्होंने दिन रात मेहनत से खड़ा किया था और ऐसे किसी दोगले इंसान की वजह से डूबने तो नहीं दे सकते। वजदान नॉर्मल सा सोफे के करीब खड़ा था। वो फाइल जिसके पास से भी मिली थी उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। सर, यहाँ कोई फाइल नहीं। मैनेजर ने सुकून की सांस ली और जाकर मालिक के साथ खड़े हो गए। अब शक की निगाहें बाकी एम्प्लॉइज पर जमी हुई थी और नूर हमेशा से पुलिस को देखकर घबरा जाती थी। उसके वैसे ही पसीने छूट रहे थे। बारी बारी सबके केबिन चेक किए गए। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों के चेहरों पर सुकून आता जा रहा था। वजदान और नूर का केबिन उस तरफ है। लड़की तेजी से पुलिस वाले को इशारा करने लगी। एक एहलकार वहां तेजी से तलाशी लेने बाहर निकला। सर देखें, ये फाइल तो नहीं। नूर ने सर नफी में हिलाते वजदान को देखा और वजदान हैरत से उस फाइल को देख रहा था। बाकी सब भी हैरान थे। वजदान, तुम ऐसे निकलोगे, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। किसी की सोची समझी साजिश थी और उसे फंसाया जा रहा था। पुलिस उसे हथकड़ी लगा चुकी थी और इंडस्ट्री के मालिक ने पुलिस को सख्ती से कहा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नूर के चेहरे की रंगत तो जैसे बदल गई। वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि कोई वजदान पर यह इल्जाम लगाएगा। मुझे तो लगता है वजदान सर को इस नूर ने फंसाया है। वैसे भी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है, क्या मालूम अपना किया सर के ऊपर डाल दिया हो। वजदान ने एक नज़र सबकी सरगोशियां सुनी। वो भी इस बात पर एतबार करने लगा था कि उसको फंसाने में नूर का हाथ है। जरूर वो लड़की की चाल है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घनावना चेहरा है। वजदान के भाई को खबर मिल चुकी थी और सारे सबूत इसके खिलाफ जा रहे थे। वो उसे मिलने पुलिस स्टेशन भी आए और कहने लगे अगर पैसों की कमी थी तो वो उन्हें बता सकता था। ऐसा जुर्म करने की क्या जरूरत थी। भाई, सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन आप तो मेरी बात का यकीन करें। कैसे यकीन कर लूं जब वो फाइल तुम्हारे पास थी। तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। मोहल्ले में निकलते 1000 बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर यहां से छूट जाओ तो दोबारा मेरे घर का रुख मत करना। वो हैरत से अपने भाई को देख रहा था। एक आखिरी रिश्ता भी दम तोड़ गया। अपनी मां के वादे की पासदारी नहीं कर सका। उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। वो लोग सुबह शाम उस पर तशद्दुद करते। पुलिस ने खुद फाइल को उसके केबिन से बरामद किया था, लेकिन वो जुर्म मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि बार बार ये कह रहा था कि वो फाइल उसने नहीं रखी। और फाइल उसके पास से मिल जाने का मतलब ये नहीं कि फाइल का मालिक भी वो है। सिर्फ नूर थी जिससे पूरा यकीन था कि ये काम वजदान नहीं कर सकता। उसने जाकर इंडस्ट्री के मालिक को ये बात समझाने की कोशिश भी की थी कि वजदान ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस मामले के बारे में एक बार फिर नज़रसानी करनी चाहिए। क्या पता मुजरिम बच चुका हो और वो दोबारा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मुजरिम तो उनके अंदर ही छुपा हुआ था। वजदान अपना मुजरिम नूर को समझता था और खुद से उसने अहद किया था जेल की सलाखों से निकलने के बाद वो नूर की जिंदगी को उस पर तंग कर देगा। मासूम चेहरे को सबके सामने बेनकाब करेगा और इस लड़की को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। नूर के बेहद इसरार पर खुफिया तौर पर इंडस्ट्री के मालिक ने दोबारा तफ्तीश स्टार्ट कर दी और ये भी कहा था कि इस बार भी अगर सबूत वजदान के खिलाफ मिले तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे कि सारी जवानी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। बाजी, आप क्यों उस आदमी के लिए परेशान हो रही हैं? अगर पुप्पो या अब्बा को मालूम पड़ गया तो आपकी कड़ी क्लास लगेगी। अब उन दो लोगों की वजह से अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाया तो नहीं जा सकता। मैंने वजदान सर के साथ 1 महीना काम किया है और उनकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। वो कभी किसी ऐसे शॉर्टकट को सीढ़ी बनाकर ऊपर नहीं जाएंगे। वो पूरी यकीन दयानी के साथ ये बात कह रही थी और उसे मुकम्मल भरोसा था कि वजदान ऐसा काम नहीं कर सकता। आखिरकार बहुत तहकीक के बाद
जब वजदान के दोस्त भी उसका साथ छोड़ चुके थे। कोई ऑफिस से मिलने तक नहीं आया था। हाँ, उसका बहुत बुरा ना सही लेकिन अच्छा वक्त गुजरा था। सबको ये फिक्र पड़ गई थी कि अगर वजदान से मिलने गए तो इल्जाम कहीं उनके ऊपर ना लग जाए। तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? यह हैरत का इंकशाफ था कि नूर उससे मिलने वहां तक पहुंच आई थी, लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। ऐसी धोखेबाज लड़की से मिलने का कोई फायदा नहीं था। वो जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करने लगा था। वो उसके इंतकाम के निशाने पर खड़ी थी। नूर बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि वो किस गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, और गलत फहमी में उसकी जिंदगी आग की लपेट में आने वाली थी। ठीक 3 हफ्ते बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे से निकाल लिया गया। बहुत ज्यादा पूछने पर भी पुलिस वालों ने बस ये बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे ऊपर जुर्म साबित ना हो सका। वजदान की गई हुई इज्जत अब वापस नहीं आ सकती थी। भाई के पास जाने का ख्याल दिल से निकालकर दोस्त के अपार्टमेंट में आ गया। किस्मत से काफी अमीर घर में पैदा हुआ था और कुछ दिन किराए के बगैर उसे वहां रहने की इजाजत भी दे दी थी। नई नौकरी तलाश करने से पहले वो कुछ सोचकर घर से बाहर निकला। नूर के घर से लेकर ऑफिस तक के रास्ते में पड़ने वाले अड्डे को अच्छे से देखने लगा। उसके दिमाग में कोई गहरा मंसूबा चल रहा था। नूर जैसे ही घर से बाहर निकली, कुछ दूरी पर उसे काली गाड़ी ने रोक लिया। हाथ पांव चिल्लाकर वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जब होश आया तो खुद को एक कमरे में पाया। क्या मैं जान सकती हूं कि आपने मुझे यहां क्यों बंद किया? सामने वजदान को पांव पर पांव रखे बैठे देखकर वो आग बगोला हो गई। तुम्हें मुझे सही सलामत देकर काफी दुख हो रहा होगा। आखिर इतना अच्छा जाल जो बिछाया था, तुम्हारे जुर्म में मैं फंस गया। तुम्हें क्या लगा सारी जिंदगी ऐसे गुजार लोगी? पहले तो नूर को समझ ही ना आया कि वो बोल क्या रहा है। फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि जैसा वो समझ रहा है वह सच नहीं है। तुम्हारे ये झूठ मुझ पर असर नहीं करेंगे। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, अभी और इसी वक्त, वरना तुम अपने घर वापस नहीं जा सकोगी। गुस्से ने दिमाग की रगों को बंद कर दिया, जबकि नूर उसके गुस्से पर खौफजदा हो चुकी थी। सर, आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? वो हक्का बक्का वजदान को देख रही थी। वो उन्हें बहुत मुहज़्ज़िब और समझदार इंसान समझती थी। कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था, और आज उनकी असलियत सामने आ गई। नूर को वो कोई मॉन्स्टर लग रहे थे, जो पहले तो उसे जबरदस्ती उठाकर ले आया और अब निकाह। वो भला उसकी सारी बातें क्यों मान रही थी? ऐसी नीच हरकत की मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे मेरे घर जाना है, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसकी पुप्पो उसके लिए नया महाज खोल कर बैठी होंगी। न जाने वो उसकी बहनों की जिंदगी कितनी तंग कर गई होंगी। रात होने से पहले उसे घर वापस जाना था। मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हें क्या लगा कि मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेजकर खुद आराम की जिंदगी गुजारोगी? जितनी शक्ल से तुम मासूम नजर आती हो उतनी हो नहीं। मैं बगैर निकाह के भी सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि निकाह कर लो, नहीं तो मेरे पास दूसरा रास्ता है अपनी बात मनवाने का। वो चलता हुआ उसके करीब आने लगा। नूर को लगा जैसे वो कोई पागल हो गया हो। शायद इल्जाम का असर उसने बहुत ज्यादा ले लिया था। कई तरीके से वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर चुकी थी कि उसने वजदान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। देखिए, मैं कितनी बार आपको यकीन दिला चुकी हूं कि मैंने आप पर यह इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो खुद वहां पर नौकर हूं। मैं इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी मुजरिम नहीं हूं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, और ये पहली दफा था वो इस तरह आंखों में आंखें डालकर वजदान से बात कर रही थी। वो जरा भी खौफजदा नहीं थी। अगर झूठी होती तो कभी नजर ना मिलाती, लेकिन इस वक्त वजदान के दिमाग पर कोई बात असर ना की। उसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका था, इसलिए नफरत भरी निगाहों से नूर को देखा। उसका बनाया इमेज खराब हो गया था। मेरे सारे रिश्ते छीन लेने के बाद अब तुम्हें अपनी बहनों की फिक्र पड़ गई। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम जैसी बेटी उनके लिए सिर्फ अजियत का बायस बन सकती है। वो वहशत ज़दा आंखों से उसे घूर रहा था।
اپنے باپ جیسے بھائی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، اس لڑکی کو زندہ رہنے نہیں دیا جا سکتا تھا، قطرہ قطرہ کر کے موت کے قریب لے کر جانا چاہتا تھا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس مزید کوئی ہمت باقی نہیں، اور تم اپنی ان حرکتوں پر بہت پچھتاؤ گے۔ پچھتانے کا وقت تو میرا چلا گیا، اس نے کاٹ دار مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی ساری زندگی ساکن ہو گئی۔ دنیا والوں کی اٹھتی انگلیاں جو شاید اسے جینے دیں، اس کی دنیا رک گئی ہو۔ ایک واقعے نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ نور اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آدمی اس کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری مجرم ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ میں تمہاری محسن ہوں۔ نور نے چیخ چلا کر اپنی سچائی کا پتہ دینا چاہتی تھی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں پر یقین کر کے میں تمہاری بات کو سچ مان لوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم واحد تھی جو میرے کیبن میں آرام سے کوئی چیز رکھ سکتی تھی۔ نور کو اندازہ ہوا کہ اس نے جیل سے باہر نکلنے کے بعد سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر وہ آفس چلا جاتا تو اتنی بڑی بدگمانی سے بچ سکتا تھا۔ کیسے بدلہ لوگے مجھ سے؟ مجھے اغوا کر چکے ہو، پھر زبردستی نکاح کرو گے۔ نکاح کے بعد اپنا سو کالڈ حق جتانے کے چکر میں میری نسوانیت کو ٹھیس پہنچا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاؤ گے۔ مجھے سب کی نظروں میں بد کردار ثابت کر کے مجھے اذیت دو گے۔ آخر تم کیا کرنے والے ہو؟ مرد ہونے کی طاقت جتا رہے ہو۔ عورت تو پہلے سے کمزور ہوتی ہے، اس کے کاندھوں پر تو پہلے ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ شاطر مسکراہٹ لے کر ہنسنے لگا۔ شام کے سائے ڈھلنے سے پہلے وہ اس کی شرط کو مان چکی تھی۔ ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ابھی تک وہ جانتی نہیں تھی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ شاید اس کے گھر کے دروازے اس پر مستقل طور پر بند کر دیے جائیں۔ اس کا شوہر بھی تو سچائی نہیں جانتا تھا۔ تمہارے وجود پر میں اپنی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ وجدان ساز سے ٹکرانے کا نہیں سوچو گی۔ وجدان نے غصے سے کہا تو وہ واش روم کی جانب بھاگی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، لیکن کبھی بھی وہ اپنی تذلیل کر کے اسے وہ حق نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سچ نہیں جانتا تھا۔ جس دن سچ سامنے آئے گا وہ خود سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ چھوڑو مجھے درندے۔ کچھ دیر پہلے وجدان نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں جاتی، وجدان نے اسے بازو سے کھینچتے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تو دوسرا بازو وجدان کی گرفت میں تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں۔ تم ساری زندگی معافی مانگو گے، تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ معصوم روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، پر وجدان اس پر اپنا انتقام اتارنے لگا۔ وہ بھاری مرد اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک عورت کب تک اس کا مقابلہ کر سکی تھی؟ نور کو اس وقت سے نفرت ہونے لگی جب وہ وجدان کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ اسے جیل میں پڑا رہنے دیتی۔ وہ انسان اس کی زندگی کا بھیانک سچ بن چکا تھا۔ جب وجدان پیچھے ہٹا تو وہ ٹوٹی بکھری سسک رہی تھی۔ وجدان گہرا مسکرایا، لیکن اسی لمحے میسج موصول ہوا کہ وہ لڑکی بے گناہ ہے۔ جس نمبر سے میسج آیا تھا وہ اس نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن سامنے والے نے کال نہیں اٹھائی۔ اسے لگا یہ شاید کسی نے نور کو بچانے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا ہے۔ دل کو اب پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسی حرکت کرنے کے بعد وہ مزید بے چین ہو گیا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی۔ اس کی بیوی اس کے دیے زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے نوچ کر کھا لیا ہو۔ جا کر کپڑے بدلو اور واپس آنے پر مجھے تمہارا وجود بہتر حالت میں نظر آئے، سرد لہجے میں حکم دیا۔ سگریٹ سلگا کر پھونکنے لگا۔ وہ ویسے ہی بت بن کر لیٹی تھی۔ اس سے برا کیا ہی ہو سکتا تھا؟ پھپھو کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں اور باپ کا جھکا ہوا سر تو وہ دیکھ ہی رہی تھی۔ کیا معلوم گھر جانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے، یا شاید اس کی زندگی یہاں مکمل ہو جائے۔ وہ اب مزید جینا نہیں چاہتی تھی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں؟
اپنا حلیہ درست کرو، تمہارے ایسے حلیے میں مائل ہونے والا نہیں ہوں۔ وہ طنز کرتا ہوا پھر سے ہنسنے لگا، جبکہ نور نے کروٹ بدل کر چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس کا مزید آج اس پر ظلم کرنے کا شاید موڈ نہیں تھا، تبھی سخت سزا دینے کے بجائے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جب وہ واپس اس گھر کا رخ کرے گا تو اس کے قدم کتنے بھاری ہو جائیں گے۔ یہ سر شرم سے اٹھ نہیں سکے گا اور ساری عمر کے لیے وہ کسی کا غلام بن جائے گا۔ اگر اب تم نے کپڑے نہیں بدلے تو یہ کام مجھے خود کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، محرم ہوں۔ وہ غصہ قابو کرتے بے لچک لہجے میں بولا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی، جب وہ مسلسل اسے یقین دلاتی نظروں سے گھورتا رہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے بیاہ کر نہیں لائے تم، مجھے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر کے لائے ہو۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ بلند آواز میں تنزیہ بولی۔ اس کے کپڑے پہن کر دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اپنے آپ کو دھونے کا دل نہ کیا، اسے لگ رہا تھا اب اس کے روم روم میں یہ درد سما گیا۔ میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، کدھر ہو؟ اس کی بات پر سنجیدگی سے اس نے سوال کیا کہ آخر کو کیا کام تھا۔ یہی وہ دوست تھا جو ایک مرتبہ بھی اسے جیل میں ملنے نہیں آیا تھا۔ میں جہاں بھی ہوں تم اپنے کام سے بات کرو۔ تجھے معلوم ہے کہ ہمارے آفس میں وہ جو چور تھی کون تھی؟ وہی لڑکی جس نے تمہارے اور نور کے کیبن کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ شاید وہ بھی نور کے ساتھ نئی بھرتی ہو کر آئی تھی اور خود کو بڑا ہوشیار سمجھتی تھی۔ اگر نور نے صحیح وقت پر آفس کی CCTV کیمرے کی جانچ پڑتال کرنے کی صلاح نہ دی ہوتی تو شاید آج تم اندر ہوتے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ نور جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ اس نے خود کو زمین پر گڑتے ہوئے پایا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے جانچ پڑتال کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ آخر اسے نکالنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی اتنی بڑی غلطی کس طرح کر سکتا ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں نکلوانے میں نور کا ہاتھ ہے۔ پورے آفس میں کسی نے یہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ہر ایک کو ڈر تھا کہیں انہیں ہی مجرم قرار نہ دے دیا جائے۔ لیکن نور نے دن رات محنت کر کے تمہارے حق میں ثبوت ڈھونڈے تھے۔ وہ فائل رکھنے والی لڑکی وہی تھی۔ اتنا بولتے ہی وہ فون بند کر چکا تھا۔ وہ واپس فون بند کرتا گھر کی جانب نکلا۔ دروازہ کھول کر کسی خوف کے تحت اندر داخل ہوا۔ بستر پر اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ نور، نور، اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ جب اسے ہوش نہ آیا تو اپنے دوست کو کال ملانے لگا۔ ان کی گاڑی میں ڈال کر وہ اسے اسپتال لے جا چکا تھا۔ دوست نے جب جاننے کی کوشش کی کہ آخر کو یہ لڑکی اچانک سے کہاں سے آ گئی، بات کو گول مول کر کے وہ اسے یہی بتا سکا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ دیکھیں مریض کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر اس کی حالت کا معائنہ کر کے وجدان کو شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جو نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ آپ کو جانور سے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ جہالت کہاں سے آ گئی۔ اگر آپ نے یہ حویث پوری کرنی تھی تو بازار منڈی چلے جاتے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اندر جا چکی تھی۔ اس کا دوست پلٹ کر چلا گیا۔ ساری رات بیوی کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ ہوش میں آئی تو آنکھیں موڑ کر لیٹ گئی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زندہ ہوں۔ آواز کسی کھائی سے آتی۔ اس کے جسم پر پہلے بھی مار کے کافی نشان تھے۔ وہ اس سے پوچھ نہیں سکا کہ آخر یہ نشان اس کو کس نے دیے۔ تمہارے جسم پر یہ نشان کس کے ہیں؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وجدان خاموش ہو گیا کیونکہ وہ کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ مزید ایک دن رہنے کے بعد اسے چھٹی مل چکی تھی۔ اب کی بار دوست کی گاڑی کرنے کے بجائے وہ ٹیکسی کروا کر بیٹھ گیا۔ نور سارے ٹائم شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ان کے والدین سے ملوانے لے کر جائے اور معافی بھی مانگے۔ ایک بیٹی کے گھر سے یوں اچانک گم ہو جانے کا دکھ وہ اچھے سے سمجھتا تھا، اور اب اسے سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ نور نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ دروازہ کسی کے کہنے پر نہیں کھولتی تھی۔
वजदान जब खाना बनाता तो कमरे के दरवाजे के नीचे से ट्रे आगे कर दिया करता, लेकिन रोज खाना वैसे का वैसा वापस आ जाता। वो उसे जबरदस्ती भी करके मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हारे कहने पर एक मर्तबा हकीकत के बारे में जरूर जांच पड़ताल करवानी चाहिए। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। अगर तुम खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिलवाने जरूर लेकर जाऊंगा, बल्कि उनके पांव पकड़कर उनसे माफी भी मांगूंगा। तुम्हें वो मुकाम दिलवाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा था ताकि दरवाजे के उस पार नूर को इसकी आवाज साफ सुनाई दे। अब इसका कोई फायदा नहीं। कांच के टुकड़े एक बार टूट जाएं तो वो दोबारा जुड़ते नहीं। तुम्हारे खोए हुए रिश्ते तुम्हें वापस दिला सकता हूं, तो मुझ पर यकीन करो। आपने मुझ पर यकीन किया, जिस तरह सारी जिंदगी में अब इस नासूर के साथ जिंदा रहूंगी। आपको भी पछतावे की आग में यूं ही ज़मीर की आवाज के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। वो गुस्से से चीखी थी। उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया था। गुस्से से चीजें उठा उठा कर मारने लगी। सारी जिंदगी घुटन में गुजारी थी। मेहनत करके वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहती थी। इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, लेकिन शायद उसके हिस्से में खुशियां लिखी ही नहीं थी। अगले दिन वो उसे उसी घर में बंद करके खुद नूर के घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग औरत बाहर आई, जो उसे देखकर काफी ज्यादा घूरने लगी। मियाँ, कौन हो? वो क्या आप नूर की वालदा हैं? हाय अल्लाह तौबा, मैं उस बद किरदार की वालदा कब से हो गई? मैं तो उसकी पुप्पो हूं। वो मनहूस कहीं तेरे साथ तो नहीं भागी थी? उनकी जबान और लहजे पर इसे काफी ताव आया था, लेकिन यहां मामलात संभालने के लिए आया था, बिगाड़ने के लिए नहीं। देखिए, जबान संभाल कर बात करें। मियाँ, तुम होते कौन हो? मेरे घर आकर मुझे ही दर्स देने वाले। आखिर अगर तुम नूर के आशिक नहीं हो तो यहां क्या करने आए हो? तुझे बता दूं, तेरे अलावा किसी और के साथ भाग गई है। मोहल्ले वाले उनकी बातों को काफी हैरानी से सुन रहे थे। जिसको नूर के बारे में इल्म नहीं था, वो भी एक दूसरे के कानों में बातें करने लगा। नूर का बाप भी बाहर आ गया। देखिए, मुझे नूर के वालिदैन से बात करनी है और उनसे बात किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नूर की बहनें वाहिद उसकी सच्चाई के बारे में जानती थी। वो अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बहन जरूर किसी मुसीबत में होगी। वो कभी किसी के साथ भाग नहीं सकती। वो तो हालात का मुकाबला करने वाली लड़की थी। वो ऐसे मुंह छुपाकर नहीं भागेगी। बोलो, क्या बात करनी है? वजदान उनसे रिक्वेस्ट करके मेहमान खाने में आ गया और फिर धीरे धीरे थूक निगलते हुए उन्हें सारी हकीकत बताने लगा। उसके साथ चाहे जितना भी बुरा हो जाता, लेकिन यहां वो नूर के किरदार की सफाई देने आया था। नूर को अपने बाप पर उतना भी भरोसा नहीं था कि वो सच्चाई जानने के बाद उसे अपनाएंगे, बल्कि वो अपनी बहनों के लिए मजीद मुसीबत नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतना नुकसान पहुंचाने की? पुप्पो सारी बात सुनकर हैरान परेशान खड़ी थी। नूर के अब्बा उसका गिरेबान पकड़ चुके थे। मैं आपका मुजरिम हूं और आप मुझे जो सजा देंगे मैं उस सजा को कबूल करने को तैयार हूं। वो सर झुकाकर एतराफ करने लगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है नूर भी इसके साथ मिली हुई होगी। अब आपके साथ रिश्ता दोबारा बनाने के लिए ऐसा झूठा नाटक कर रहे हैं मियाँ बीवी। तुम चुप करो। मुझे अपनी बेटी की तरबियत पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा कर नहीं सकती। वजदान के कहने पर वो उनके साथ रिक्शे में बैठकर अपार्टमेंट में आ गए। पहली मर्तबा उसका बाप उसके लिए स्टैंड लेने जा रहा था। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते ही उनकी नज़र अपनी बेटी के बिखरे हुई हालत पर गई, जो शायद काफ़ी दिन से बाल कंघी ना करने की वजह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। वो कहीं से भी उनकी नूर नहीं लग रही थी। अब्बा, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें देखते ही वो खौफजदा हो गई और अपने हक में गवाही देने लगी। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं किया।
मैं बदबख्त बाप हूं जिसने अपनी बेटियों को इतना हौसला नहीं दिया कि बाप के सहारे पलट सके। मैं तेरा वो बदबख्त बाप हूं जिसने सारी जिंदगी अपनी बहन की सुनी और उसी की मानते हुए अपनी बेटियों को हमेशा से पीछे रखा। ऐसा नहीं था, हकीकत पर मेरी नजर नहीं थी, लेकिन हकीकत जानने के बाद भी मैं झूठ का साथ देता था। मुझे लगा मेरी बहन तकलीफ में अपना घर टूट जाने के बाद वो ऐसी हो गई है। अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो खुद को दुनिया में अकेली न समझने लग जाए। मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। वो रोते हुए हाथ जोड़ गए थे। 2 दिन से जब उन्हें नूर ना मिली तो खामोशी इख्तियार कर चुके थे। अपनी बहन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी नूर ऐसा नहीं कर सकती। अब्बा, वो अब्बा के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वजदान सारी हकीकत समझ चुका था, इसलिए खामोशी से वहां से निकल गया। वो जानता था कि बाप बेटी को दिल हल्का कर लेना चाहिए। काफी देर रोने के बाद नूर के अब्बा कहने लगे वो उसे वापस ले जाने आए हैं। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब वो अपनी बेटियों के साथ खड़े होंगे। अब्बा, मेरी बहनों की जिंदगी तंग हो जाएगी, उनके रिश्ते नहीं होंगे, मुझे तुम यहीं रहने दो। लेकिन वो उसकी एक ना सुनते हुए वापस घर ले आए। उसकी बहनें उसकी खिदमत में लग गई थी। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। आखिर काफ़ी दिनों बाद नवाले हलक में उतरे थे। पुप्पो को कुछ दिनों के लिए उन्होंने दूर की खाला के घर भेज दिया। यूं घर से निकाले जाने पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन भाई ने उन्हें समझाया कि इस वक्त उनका यहाँ से चले जाना बेहतर है। बाजी, यूं लगता है जैसे ये सब कुछ ख्वाब हो। अब्बा हमारा ख्याल रखने लगे हैं, अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया है। यही तो हम सब चाहते थे। नूर की छोटी बहन नूर से कहने लगी, लेकिन वो खामोशी से बिस्तर पर लेटी थी। खाना खाने के बाद वो थोड़ी बहुत बात करती थी। अभी तक उसकी रूटीन मामूल पर नहीं आई थी। वो उस दिन के दिए जख्म को धो नहीं पा रही थी। 2 महीने गुजर जाने के बाद वजदान उनके घर वापस आया। नूर के अब्बा ने सख्ती से कह दिया कि अगर उनकी बेटी ये रिश्ता नहीं रखना चाहेगी तो वो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि खुला के लिए केस दायर कर देंगे। जबकि वजदान ऐसा नहीं चाहता था। उसने आखिरी मर्तबा दरख्वास्त की कि वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है। मैं तुमसे ये ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ रहकर भी मुझे सज़ा दे सकती हो। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। 2 महीने बाद आपको यह ख्याल आया। मैं नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकूं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जुर्म की भरपाई हो सके। क्या तुम हर जख्म पर मरहम रख सकते हो? बगैर माफी लिए वो वापस जा चुका था और धीरे धीरे साल बीत गए। अब वो अपनी गाड़ी और घर खरीद चुका था, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। वो जानता था उस घर की मालकिन जरूर आएगी। वो रोज तुम्हें ऑफिस से लेने आता है, एक बार माफ क्यों नहीं कर देती? देखो, इस वक्त रिश्ते चले जाने के बाद फिर अपनी बर्बादी को देखकर पागल हो चुका था। कुछ लोग तो उसके बाद अपना ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसने अपनी गलती की भरपाई के लिए हमेशा तुम्हारे सामने सर झुकाया है। वो गाड़ी से टेक लगाकर उसके इंतजार में खड़ा था, जबकि वो खामोशी से पास से गुजरकर अपने बाप की बाइक के पीछे बैठ गई थी। घर आने के बाद उसने बाप से साफ कह दिया कि वो इस महीने कोई फैसला नहीं करेगी तो वो खुद खुला लेकर उसकी शादी दूसरे घर करवा देगा। अब सारी जिंदगी वो उसे घर में नहीं रखे, उसे फैसले करने का हक दिया था। अगर वो फैसला ना ले सकी तो फिर अपने बाप की सुननी पड़ेगी। अगले दिन बेचैनी और सोच विचार के बाद ऑफिस से निकली तो दोनों गाड़ियां खड़ी थी। बाप की मोटरसाइकिल के पीछे बैठने के बजाय वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। आखिरकार इतने महीनों की ख्वारी के बाद उसे माफ़ी मिल चुकी थी। ये एक छोटा सा इजहार था। वजदान के भाई ने दोबारा राब्ता करके रिश्ता निभाने की कोशिश की थी, जिस पर वो उन्हें माफ़ भी कर चुका था, लेकिन दोबारा रिश्ता कायम करने से माजरत कर ली थी और उन्हें यह भी कहा था कि वो उनसे कोई गिला शिकवा नहीं रखता,
बस दोबारा रिश्ते पर एतबार करने से डर रहा है। नूर से उसे कब मोहब्बत हुई वो खुद नहीं जानता था। आज अगर वो खुलकर जिंदगी जी रहा था तो वो इस लड़की की बदौलत था। जब किसी ने उस पर एतबार नहीं किया तब उसने इस पर एतबार किया। अब तो वो उसका मुजरिम भी था। सारी जिंदगी भी अगर वो उसे सजा देती तो वो काटने को राजी हो जाता। मैंने अभी माफ नहीं किया, लेकिन कुछ साल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सजा भी देना चाहती हूं। खिड़की की तरफ मुंह मोड़कर वो खुद को सख्त साबित करने लगी, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। ये उसके ससुर और उसकी मिली भगत थी। वो जानता था कि ये लड़की उससे दिल ही दिल में पसंद करने लगी है। तभी दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया जो कामयाब भी हो चुका था। अब उसके दिल में जगह बनाना वजदान का काम था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।